So for this pole, if you have any curve, and here is a point fixed, this point P is fixed, so you can draw this lines, like this is called secant. This P, what is secant? If it is cutting the conic at 2 points, suppose that PAB, PA, तो ये इन secants का अगर ये पढ़ लेंगे, it is your chord of contact. So you just take a tangents of these chord of contacts. So you can plot pair of tangents always from this chord of contacts. So the locus of this, it was your this pole, है ना, locus of all these chord of contacts. इसका locus ले, यहाँ second tangent आपकी अगर मैं यहाँ से plot करूँ, so it will be like this. तो इन points का जो इस तरीके से जो points आएंगे, when you will join by a line, so एक line से I can join it like this. A line has straight line. This line is called polar, and this fixed point is called pole, which is outside. It may be on the curve. Another definition of this in terms of harmonic conjugate points. Suppose I am taking now conic like I am taking conic this. Suppose this is a conic and you have two okay. So this is cutting here, it is touching it here. Suppose this is a point P, I have coordinate x dash, y dash, and what I am taking, you can join this. Suppose it is joining by line T1, T2. This is a line. Its points is T1, T2. And what I am taking, here I am taking from P, you are having a line which is this is secant, suppose P, and which is crossing at A and B. These are 2 points, and here this point is, suppose this is your Q. So if any secant, here I am saying PAB any secant, है ना, cutting the conic at 2 points AB of a conic section. Sir, where is P? This is P. Yeah, P is outside here. ये P है आपको. Okay, sir. So if any secant PAB of a conic and मोहम्मद वली कहाँ चल रहा है, कैमरा ऑफ करो मोहम्मद वली अपना. If any secant PAB of a conic from a point P meets the conic at A and B, and the point Q, this point Q, this is on the secant, is the harmonic conjugate of P with respect to A and B. Harmonic conjugate means, that means 1 upon PA plus 1 upon PB is equal to 2 upon PQ. Okay, 1 upon मतलब distance between this Sorry, PA camera on again. plus 1 upon PB is equal to
2 upon PQ. This is the relation. If any point Q satisfying the relation with respect to 2 points, we say that the points are harmonic conjugate. Then the locus of Q is the polar of P. ना ऐसे सारे Q, all the Q which are harmonic conjugate to a point P with respect to A. अब यहाँ पर A भी है, you will take another line, so that will be harmonic conjugate to P with respect to the points which are intersecting with conic. So the locus of Q is the, तो जो उसका locus आएगा, तो पॉइंट्स आएंगे, इनको जब ज्वाइन करेंगे एक लाइन आएगी, that is the polar of P, and this point P, this is called pole of this plane. This is the pole of this polar. Okay, so it is the definition of the definition in terms of harmonic conjugate. Using this definition, I will find the equation actually. What is the equation of the polar? So this is also a definition. So we have an equation of polar. Page 74. Equation of polar. So I am considering, suppose let S be the conic, ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. That is any conic, be any conic, and so conic हमने जो ये पीछे ड्रॉ किया मैंने यही conic ले लिया है ना, ये point P है, you have a conic, P is the point, x dash y dash, P x dash y dash be any fixed point, and Q alpha beta be any point on PAB like this. Q जो point है वो इस तरीके से PAB पे inside the conic, उसके कोऑर्डिनेट हमने अल्फा बीटा मान लिया. So what is the equation of secant? अब देखो मुझे पोलर की इक्वेशन निकालने के लिए आई विल हैव टू यूज दिस रिलेशन, ध्यान रखना है ना, इस रिलेशन का यूज करना है. तो इसमें आई नीड पी ए पी बी पी क्यू. पी ए क्या है? पी ए इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए, पी बी इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड बी, पी क्यू इज द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू. ये डिस्टेंसेस हैं, सो आई नीड डिस्टेंसेस. सो व्हाट आई विल डू, फर्स्टली आई विल राइट द इक्वेशन ऑफ दिस सीकेंट पी ए बी. पी ए बी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, विच इज अ लाइन. सो इक्वेशन of the secant PAB is in terms of DCs क्या लिख सकता हूं मैं, passing through P, x minus x dash upon L is equal to y minus y dash upon M is equal to R, है ना. LM you must have studied in your unit 1 I think. LMN are the direction cosines. पढ़ाई टॉपिक आपने. The intercept with the x-axis, the intercept with the x-axis, तो उसमें जो एंगल बनेगा उसका कोसाइन जो होता है, that is your L, है ना, the cosine of angles made by the line with the x-axis and y-axis. So we can write the equation of a line in terms of DCs. Yes sir. इसे कुछ है ना, यूनिट 1 में आपने पढ़ा होगा आई थिंक ये टॉपिक.
Yes, sir. There are different forms of equation of a line. So it is one of the form when you know what are the direction cosines of a line. So मैंने question 2 लिख दिया है. Okay, you can write here where L and M are the डायरेक्शन कोसाइंस को हम शॉर्ट में DCs भी लिख देते हैं. डायरेक्शन कोसाइंस शॉर्ट फॉर्म DCs, डायरेक्शन कोसाइंस. एंड R क्या होता है? R इज द डिस्टेंस. ये जो हम R लेते हैं क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन x y एंड x डैश y डैश. ये डिस्टेंस होती है जब इक्वल लिखते हैं. R is the distance between x comma y and x dash comma y dash and x y कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है अगर आपका यहाँ पर, तो इस x dash y dash से, तो अगर यहाँ पर x y आपका a पे पहुंचेगा तो ये डिस्टेंस जो आएगी ये आपके पास आ जाएगी. r जो होगा वो डिस्टेंस होगा बिटवीन दिस. तो यू नो कि अगर यू आर राइटिंग दिस इक्वेशन और बिकॉज दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग दिस एट 2 पॉइंट्स, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 2 डिस्टेंसेस मिलेंगी, क्योंकि ये जो एक्स वाई है ये कोनिक पे कहाँ लाई कर सकता है? 2 पर, एट 2 पॉइंट्स, एट ए पे और एट बी पे. तो सी हियर, सो वी गॉट x इज इक्वल टू x डैश प्लस एल आर एंड y इज इक्वल टू y डैश प्लस एल आर, है ना? ये x और y की इक्वेशन आ गई. अब नाउ आई एम टेकिंग कि सपोज दिस पॉइंट लाइज ऑन द कोनिक. if x comma y lies क्या on पढ़ा the रहा हूँ तो सीधा conic, है ना? कौन बोल रहा है भाई? बीच में डिस्टर्ब हो रहा है. So if xy lies on the conic, what will happen? It will satisfy the equation 1. You my students. Yes, sir. So it will satisfy the equation 1. From 1 we have, इसे उठा के यहाँ पुट कर दीजिए. सर वो क्या लिखे? इफ x, y lies on the conic तो s equivalent 0. हाँ, इस कोनिक पे ना, इसकी इक्वेशन यही तो है. S, Yes, sir. तो फ्रॉम 1 ये सेटिस्फाई करेगा. ओके, सो इसे हमने पुट कर दिया यहाँ पे. So you will be getting, just put the value it here simply, y dash plus mr plus by square, so y dash plus mr whole square plus 2gx x dash plus lr plus 2f y dash plus mr plus c is equal to 0. Okay, अब यहाँ पे what I will do, I will make it a quadratic equation in R. इसे हम R में quadratic बनाएंगे. क्यों? सर Yes. सर आपने ऊपर जो y इक्वल्स टू y डैश प्लस एल आर होगा, यहाँ पे एम आर होगा ना? हाँ सॉरी, MR होगा. यस, ये MR है. यस, थैंक यू, करेक्ट कर देते हैं. ये MR होगा. ओके, ये 2 पॉइंट्स हैं. अब देखो व्हाट आई एम डूइंग, आई जस्ट पुट द पॉइंट इन द इक्वेशन ऑफ अ कोनिक. अब कोनिक पे जब ये एक्स वाई रखा आपने, तो आई विल मेक इट अ पॉलिनोमियल, मींस अ क्वाड्रेटिक इन आर. तो आर में क्वाड्रेटिक बनेगा तो उससे क्या होगा? यू विल बी गेटिंग 2 रूट्स ऑफ आर. तो आर क्या है? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, है ना? तो यू कैन सी फ्रॉम हियर आल्सो कि जो कोनिक पे अगर रखा है तो जो एक्स डैश एक्स वाई है ये ए पर भी आ सकते हैं, बी पे भी. तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि जब आप आर को सॉल्व करेंगे तो 2 ही वैल्यूज आएंगी, क्योंकि एनी सेकेंड इंटरसेक्टिंग द कोनिक एट 2 पॉइंट्स. तो जब हम आर में निकालेंगे तो आर डिस्टेंस है बिटवीन एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश. तो एक्स वाई मे बी एट ए, इट मे बी एट बी आल्सो, है ना? तो 2 डिस्टेंसेस आएंगी. इसलिए जब हम आर में सॉल्व कर रहे हैं, यू आर गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर, है ना? इट इज ऑब्वियस फ्रॉम दिस फिगर आल्सो. ओके, और मैं आसमान की ऊंचाइयों पर कोरा ही कोरा.
ये सुहेल शेट्टी क्या बोल रहे हैं? सुहेल कौन है भैया? सुहेल शेट्टी आपकी क्लास में? ये क्यों भाई, सुहेल कहाँ गए? ईशान, ईशान अहमद यस सर। कौन है ये? सुहेल शेट्टी कहाँ है? अभी जो अभी शायरी कर रहे थे, वो सर क्लास में ही एक बॉयज है। हैं? क्लास में? वो क्लास में ही एक बॉयज है। क्लास में एक वो क्या है? सर क्लासमेट ही है हम लोग का। तो कहाँ है वो? क्या क्यों डिस्टर्ब कर रहा है बीच में भाई? शायद लेफ्ट हो गया सर। ठीक है, अब इसको मैं इससे कह रहा हूँ मुझसे बात करिए। किसका फ्रेंड है यहाँ पे? वो चलिए खैर। सो दिस इज एक्स डैश प्लस एल आर स्क्वायर। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब Yes, इसको, sir. हाँ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इसकी क्वाड्रेटिक लिखेंगे, क्वाड्रेटिक। तो इसमें मैं क्वाड्रेटिक लिख सकता हूँ, आर के टर्म्स अरेंज कर लें तो यू विल बी गेटिंग आर स्क्वायर, here r square ar square plus 2hlm plus bm square plus, है ना? तो टर्म्स अरेंज कर लिए ओपन करके, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स कर रहा हूँ। यहाँ स्क्वायर का टर्म्स क्या आएगा? al आएगा, here 2hlm and here by bm r square, सिमिलरली प्लस 2r के टर्म्स में इफ यू विल सी, तो r के टर्म्स से यहाँ से आएंगे 2x डैश lr, है ना? इसको अगर मैं l के टर्म इस साथ लिखूं तो आई कैन राइट ax dash plus hy dash plus g times of l plus hx dash plus by dash plus f times of m, यह आएगा 2r एंड रेस्ट ऑफ द टर्म कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म इसमें जो विदाउट r टर्म आ रहा होगा, देखिए एक टर्म आएगा यहाँ ax dash स्क्वायर 2hx dash y dash, तो ये पूरा टर्म आपका जो आएगा वो क्या आ रहा होगा? इफेक्ट h dash इज इक्वल टू 0, है ना? ये पूरा एस डैश हो, एस डैश का मतलब क्या हुआ? कि जस्ट एक्स डैश बाय डैश पुट इन 1, वो टर्म्स आएंगे। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इन आर स्क्वायर, विच इज क्वाड्रेटिक इन आर। इसे मैं क्वेश्चन नंबर 3 रख दे रहा हूँ यहाँ पे, विच इज क्वाड्रेटिक इन आर। ओके, नाउ सीकेंड पीएबी क्वाड्रेटिक से अंडरस्टूड है, मैंने बताया आपको कि सीकेंड पीएबी इसे 2 पॉइंट से मीट कर रहा है, तो यू विल बी गेटिंग 2 रूट्स r1 r2। तो r1 will be the distance suppose from p to a and r2 will be the distance from p to b, इसीलिए क्वाड्रेटिक आ रही है। so which is quadratic in r and let r1 and r2 be the roots of equation 3, then what will happen? क्योंकि r क्या है यहाँ पे? r हमारा डिस्टेंस होता है, then r1 and r2 measures the distances PA and PB, Now, because I am finding the equation of a polar, so we know it will be satisfying this condition. So, if Q is harmonic conjugate, Q is the harmonic conjugate of P with respect to A and B, then what will happen? It will be satisfying this relation 1 upon PA plus 1 upon PB is equal to 2 upon PQ, है ना?
हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्यों है? इफ यू हैव स्टडीड योर हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो उसमें आपको मालूम होगा जो हार्मोनिक मीन होता था वो क्या होता था, 1/b a + 1/b = 2/c सम पॉइंट है, उसी टाइप का ये फॉर्म होता है, इसलिए हम इसे हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहते हैं. Here if I am assuming, let us suppose this PQ is some capital R and PA को हमने R1 कह दिया and PB को R2 है ना, क्योंकि R1 R2 डिस्टेंस आपकी है ये P से A तक की और P से B तक की R2 है, and let us suppose this PQ is some R. Okay, so what will happen? Putting it here, you will be getting 1/R1 plus 1/R2 is equal to twice upon R, or you can solve it by taking LCM and arranging the terms. R is how much? Twice R1 R2 upon R1 plus R2. Now what is R1 R2? ये R1 R2 term क्या है? So distance between P and A. हाँ, तो R1. प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट R2 is क्या है? distance between P. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट क्या होगा? R1 R2 क्या है? Roots है? R1 R2 देखिए रूट्स भी हैं. Yes ना, sir. roots of three. Product तो अगर of roots है. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसका इक्वेशन Yes, 3 sir. का, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है P आपका? upon A. C P अपॉन upon A. तो C तो आपका माइनस C अपॉन A होता है ना, तो C Yes, इज sir. S डैश है, C इज S डैश, तो माइनस S डैश अपॉन A, ये पूरा टर्म A है. नहीं सर माइनस नहीं होता है सी अपॉन माइनस नहीं होता है माइनस sir. नहीं होता सर, तो C upon A ही होता है. पॉजिटिव होता है. तो सब में क्या सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस B अपॉन A है ना. Yes sir. Minus Yes, P sir, upon A. yes. ठीक है ठीक है ठीक है. तो व्हेन यू विल राइट हियर इट इज ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अपॉन सम ऑफ द रूट्स. तो जब सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जब रेशियो में करेंगे तो C अपॉन A B अपॉन A में तो A तो कैंसिल हो जाएगा है ना, और क्या आएगा साथ में? Yes. माइनस साइन के साथ ऊपर तो C आएगा, ट्वाइस ऑफ C. और जब आप वो B अपॉन A करेंगे तो B में ट्वाइस A भी आ रहा है, तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल बी हैविंग ओनली S डैश. S डैश का मतलब है AX डैश स्क्वायर अपॉन 2. ये सम ऑफ द रूट्स में 2 आएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कैंसिल आउट, यू हैव ओनली दिस टर्म, दिस इज योर B अपॉन L टाइम्स AX डैश प्लस HY डैश प्लस G प्लस M टाइम्स HX डैश प्लस BY डैश प्लस F. ठीक है, ये टर्म सारा हुआ प्लस है ये प्लस BY जैसे तो HX dash plus BY dash. Okay, this is the term product of roots upon sum of the roots. This is suppose equation number 4. यहीं से हमें बस पोलर की इक्वेशन निकल जाएगी, because polar is what? Polar is the, here you see here, polar is the locus of this point Q. Q पॉइंट का लोकस, जो Q को मैंने अल्फा बीटा माना है, इसका जो लोकस है वही तो पोलर है आपका. This is the line. So here you got equation number 4. So this point Q also lies on PAB. Now since Q alpha beta, this lies on equation of secant. secant की इक्वेशन मतलब इक्वेशन ऑफ secant जो हमने लिखी थी 2, तो क्या करेगा? इट विल सेटिस्फाई, दैट मींस अल्फा माइनस एक्स डैश अपॉन एल इज इक्वल टू बीटा माइनस वाई डैश अपॉन एम इज इक्वल टू कैपिटल आर. ये आर क्या है? क्योंकि आर इज द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू. सिंस पी क्यू इज इक्वल टू आर है, तो यहाँ पर अब ये आपके पास क्या है? ये कैपिटल आर लूंगा मैं यहाँ पर जब अल्फा वैल्यू पुट कर दूंगा. ओके, क्या क्या हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस था आपके पास, ये डिस्टेंस थी ये PAB. तो PAB क्या हो रहा था? PAB इज क्रॉसिंग दिस पॉइंट Q. तो अगर मैंने Q सेटिस्फाई कराया तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R.
इससे क्या होगा, हमारे पास L और M एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे आई गॉट L इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड एक्स डैश अपॉन R एंड M इज इक्वल टू बीटा माइनस वाई डैश अपॉन M, सॉरी अपॉन R, M की वैल्यू निकाल दिए अपॉन R. So now I can put this value upon R back in equation 4, क्योंकि हमें यहाँ से LM एलिमिनेट करने हैं और फिर लोकस निकालना है. So putting the values of L and M in 4, we get, अब 4 में अगर हमने रखा, देखिए तो 4 क्या था, R इज इक्वल टू दिस. तो R जब आप वैल्यू पुट करेंगे LM की, तो जो नीचे डिनोमिनेटर में R आएगा, यहाँ पे R कैंसिल लेंगे, ऊपर जाएगा, R विल कैंसिल आउट, यहाँ 1 बचेगा. इसकी पूरे की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो यू विल बी हैविंग, इट विल गिव यू AX', इसे लेफ्ट में ले जाते हैं ना LM की वैल्यू पुट करके, तो इट विल बी गिविंग यू अल्फा माइनस एक्स डैश AX' प्लस H Y डैश प्लस G. समझ में आ रही बात? L की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने यहाँ पर, L की वैल्यू आई एम पुटिंग अल्फा माइनस एक्स डैश अपॉन R, ये रखा. और M की वैल्यू बीटा माइनस Y डैश अपॉन R. सो दिस R विल गो ऑन न्यूमरेटर, इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ बचेगा अल्फा माइनस एक्स डैश और यहाँ 1 बचा, इसे लेफ्ट में लेकर यहाँ, तो इसलिए लेफ्ट में जाके ये टर्म बचेगा इनटू दिस प्लस बीटा माइनस वाई डैश एच एक्स डैश प्लस बी वाई डैश प्लस एफ, दिस इक्वल टू माइनस टाइम्स, क्योंकि राइट हैंड साइड इधर ऊपर माइनस था, दिस टर्म एज इट इज ए एक्स डैश स्क्वायर प्लस 2h एक्स डैश वाई डैश प्लस बी वाई डैश स्क्वायर प्लस 2g एक्स डैश प्लस 2f वाई डैश plus C. This is your S dash. Now I will open these terms. Some terms will be cancelled out here. देखिए, so what? पहले alpha की firstly I am multiplying alpha in all these 3 terms. So this implies that A alpha x dash plus H alpha y dash plus G alpha. ये first term आ गया. Now multiplying with minus times of this. 3 terms यहाँ से आएंगे. Minus ax dash square minus h x dash y dash minus g x dash, है ना, ये फर्स्ट ब्रैकेट हुआ है 6 टर्म्स. सिमिलरली 3 टर्म्स विद बीटा, सो प्लस h बीटा x dash प्लस b बीटा y dash प्लस f बीटा. Now multiplying with y dash in each term, so minus h x dash y dash minus b y dash square and minus f y dash. ये लेफ्ट आपके 12 टर्म्स आएंगे. राइट हैंड साइड में माइनस साइड अंदर ले जाऊं, तो यू विल बी हैविंग माइनस ax dash स्क्वायर प्लस 2h dash y dash, सॉरी माइनस में आएंगे साइड टर्म्स, बिकॉज आई हैव मल्टीप्लाइड इनसाइड, आई हैव टू इनसाइड द ब्रैकेट, माइनस b y dash स्क्वायर minus 2g x dash minus 2f y dash minus c. ठीक. Now I will write all the terms. So a alpha x dash, this term as it is, a alpha x dash. Okay. Then here I am taking h term. So h you have here h alpha y dash and you have h here. एच बी टी सिंगल राइट, जहां मैंने सिंगल एरो लगाया है, यहां से अगर मैं एच कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, अल्फा वाई डैश प्लस बीटा एक्स डैश. ठीक है, देखो इसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपकी आती है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, उस फॉर्म में लिख रहा हूँ इस तरीके से कि यहाँ अल्फा आ रहा है, क्योंकि जब लोकस लूंगा तो ये एक्स में रिप्लेस हो जाएगा. तो पहले ए का टर्म आता है, फिर आपका 2hxy, तो एच का टर्म क्या था, अल्फा वाई डैश प्लस बीटा, एरो वाला टर्म लिया हमने. देन नेक्स्ट टर्म हम लेते हैं बी वाई स्क्वायर, तो बी का टर्म देखें अगर बी बीटा वाई डैश,
तो दिस इज योर बी बीटा वाई डैश। इस टर्म को लिख रहा हूं अब मैं, दिस टर्म, इसे ले लिया हमने यहाँ, b beta y dash, all the terms will be absorbed here, you can see here. Now minus ax dash square, देखिए it will be cancel out with this. Next term I will take ये h x dash y dash, देखिए यहाँ पर है माइनस 2h dash x y dash और ये है माइनस, तो ये माइनस इधर जाएगा, एक टर्म कैंसिल होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक वन टर्म विद माइनस साइन एच एक्स डैश वाई डैश। ओके, ये जो टर्म है देखिए, इन सारे टर्म्स को हम अरेंज करें तो एच एक्स डैश वाई डैश और एक ये भी है, तो इस टर्म को और इस टर्म को अगर मिलाएंगे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, टू डबल लाइन वाला टर्म, माइनस एक्स डैश वाई डैश माइनस एक्स डैश वाई डैश माइनस टू। ओके, सिमिलरली दिस इज बी वाई डैश स्क्वायर बी वाई डैश स्क्वायर, तो दिस इज कैंसिल आउट, इसे ऐसे क्रॉस कर दे, इस लाइन से क्रॉस, एंड माइनस जी टू जी एक्स डैश, अब ये देखिए एक टर्म है ये जी एक्स डैश माइनस जी एक्स डैश, ओके, और एक ये माइनस टू जी, इसे इधर लाएंगे तो माइनस टू जी एंड प्लस जी, तो माइनस जी का एक टर्म बचेगा इस टर्म से और इसमें से, फ्रॉम दिस माइनस जी एक्स डैश बचेगा, इससे लेफ्ट में आएंगे तो प्लस जी एक्स डैश, तो जी एक्स डैश का टर्म एक यहाँ पर आएगा और एक जी का टर्म ये आएगा साथ में, तो व्हेन आई विल टेक g कॉमन तो यू विल बी हैविंग अल्फा प्लस एक्स डैश, ठीक है, these three terms, these 1 2 3, these three term will combine and give you this term, ठीक है, ये टर्म भी एब्जॉर्ब हो गया आपका। आगे बढ़िए, अब क्या बचा है, f का टर्म है, तो f में यू हैव f बीटा, यहाँ डबल लाइन लगा रहा हूँ, f बीटा एंड हेयर यू हैव f y डैश, तो f y डैश एंड एक f y डैश कहाँ था आपके पास, ये था, ये स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे f y डैश था, स्क्वायर नहीं है ना, ये जो है, तो माइनस एफ वाई डैश यहाँ जाएगा एक, तो एक एफ वाई डैश बचेगा यहाँ पे और एक एफ बीटा यहाँ पर, तो दिस टर्म एंड दिस टर्म एंड दिस टर्म, ये डबल लाइन टर्म, ये दे विल एडजस्ट एंड इट विल गिव यू एफ टाइम्स बीटा प्लस वाई डैश, ठीक है, सारे टर्म एब्जॉर्ब हो गए, माइनस सी को इधर ले गए हम, प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो यू गॉट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। देखिए now for the locus of alpha beta I will replace alpha beta by xy, क्योंकि वो आपके पास the polar is the locus of alpha beta, the point q is which is moving, so the locus of alpha beta, that means the equation of the polar, ये वही आपकी polar की equation है, the equation of the polar of p x dash y dash is ax x dash plus h, बस यहाँ क्या करा, पोलर लोकस के लिए अल्फा बीटा को एक्स वाई से रिप्लेस कर दिया, नथिंग एल्स, एक्स वाई डैश प्लस वाई एक्स डैश प्लस बी वाई वाई डैश प्लस जी टाइम्स x plus x dash plus f times y plus y dash plus c is equal to 0, ये क्वेश्चन आपकी जो आ रही है, ये भी टेंजेंट की कोनिक की क्वेश्चन आ रही है, उस टेंजेंट में पॉइंट क्या होता था आपका, ऑन द कोनिक, मैंने बताया t if tangent, it is a question of a tangent to the conic where the point p x dash y dash lying on the conic, here p is not on the conic, अगर p कोनिक पे होगा उस केस में ये वही इक्वेशन सेम बन जाएगी। Is it clear question of polar? तो जब हमें पोलर की प्रॉब्लम्स करनी होगी तो वी विल राइट दिस इक्वेशन एंड उसे सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ अ कोनिक विल बी कमिंग आउट। बताइए। Yes, sir. ठीक है, one note here, you can do some simple observations. Suppose if p is the midpoint of AB, अगर पी ए बी का मिड पॉइंट हो जाए, सपोज करो, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि ये पॉइंट अंदर आ जाता है, अगर दिस पॉइंट पी पॉइंट कैन बी एनीवेयर, सपोज दिस पॉइंट पी इज इनसाइड, है ना, ऐसा कोनिक कौन सा होगा, जैसे मैं अगर सर्किल ले लूं, सर्किल में इफ आई एम टेकिंग पी इज एट द सेंटर, तो क्या होगा, इट विल बी द मिड पॉइंट, है ना,
So if P is the midpoint of the conic of the like this secant AB, then in that case what will happen? R1 and R2 they will be equal in magnitude but opposite in sign, है ना? R1 and R2 are equal but opposite in sign. ये तो होगा, साइन में अपोजिट होंगे क्योंकि डिस्टेंस है ना ये. R1 इज द डिस्टेंस फ्रॉम P, तो P से डिस्टेंस है A की और P से डिस्टेंस है, तो अगर ये डिस्टेंस 2 है तो ये -2 होगी क्योंकि अपोजिट जा रहे हैं, होगी सेम विथ अपोजिट साइन. सो दे आर, दैट मींस this relation 2 upon R, this will equal to what? 1 upon R1 plus 1 upon R2. ये क्या बन जाएगा? 1 upon R1 minus 1 upon R1, क्योंकि R2 कितना हो गया? minus R1. So that will be 0. So that means R is how much? Infinite, है ना? R क्या जाएगा? Infinite आ जाएगा. So it means what? R क्या distance था? R was the distance between Q and P. Capital R was the distance between Q and P, है ना? इसके बीच में जो डिस्टेंस था ये हमने कैपिटल R लिया था. तो ये अगर कैपिटल R इनफाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट Q है P से, वो कहाँ होगा? इट इज फार अवे फ्रॉम द कोनिक. हार्मोनिक कॉन्जुगेट Q of P is far away from conic. ठीक है, so this case will be what? So you can say there will be no real polar. There will be no real polar of P. Real polar कोई P की नहीं मिलेगी. So for central conic, ये केस कब होगा? जब आपके सेंट्रल कोनिक्स होंगे, जैसे सर्किल है. सेंट्रल कोनिक में जो P आपका सेंटर होगा, अगर फॉर सेंट्रल कोनिक the